آج سپریم کورٹ نے قادیانی مبارک ثانی مقدمے کے حتمی فیصلے کو اناؤنس کیا ہے اور انہوں نے گزشتہ فیصلے جو 6 فروری کو اور پھر 24 جولائی کو ہوئے تھے ان کے تمام قابل اعتراض حصوں کو حذف کر دیا ہے۔ میں اس بہت بڑی کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام دینی جماعتوں کو، ان کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج سپریم کورٹ پہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام شریک ہوئے اور انہوں نے جس یکجہتی کے ساتھ کورٹ کے سامنے اپنا موقف دیا اور سپریم کورٹ کو اپنے موقف کے حوالے سے قائل کیا، یہ سب قابل احترام ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں اور انہوں نے امت پر احسان کیا ہے۔ اس سلسلے میں میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یوم جمعہ کو بطور یوم تشکر منایا جائے گا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے، متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور آج جب پوری قوم 7 ستمبر 2024 کو مینار پاکستان لاہور پر 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہی ہے اور جس دن کو یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا، آج کی اس فیصلے نے گولڈن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبارہ کر دیا ہے، اور اب پاکستان کے عوام ایک الگ جذبے کے ساتھ اور ایک تازہ ترین فاتحانہ تصور کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 7 ستمبر یوم الفتح سنگ میل ثابت ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی، نہ ان کی سازش چل سکے گی۔ یہ امت کی آواز ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے، یہ متفقہ آواز ہے۔ ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اگر کوئی اور شہری دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنے ملک کے آئین سے بغاوت کرتا ہے، اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں، انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے، آئین کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے باوجود دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے تو انسانی حقوق نہیں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا رونا دھونا یہ بھی ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جا رہا ہے۔ کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ مٹھی بھر لوگوں، تم نے پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کافر کہا ہے، اور غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ساری چیزیں ہیں، ریکارڈ موجود ہیں ساری چیزیں۔ تو اس صورتحال میں امت مسلمہ نے بھی، پاکستانی قوم نے بھی ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، آج بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہوا ہے، اور یہ فتح اس یکجہتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ یکجہتی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ اس मौजू पर जब पार्लियामेंट में बात हुई तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ एक पेज पर थी, हुकूमत भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, और इस मसले पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं था। दीनी जमातें हमेशा इस पर यकजहती का इजहार करती चली आई हैं और आज भी उन्होंने वही मुजाहरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से एक जिंदगी मुल्क के अंदर मौजूद है, एक शऊर मौजूद है, एक एहसास मौजूद है, और इंशाअल्लाह ये शऊर और एहसास और कौम के अंदर ये जिंदगी इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी और कौम एक जिंदा कौम को सबूत पेश करेगी। जिस तरह दीनी जमातों ने इस इत्तेहाद का मुजाहरा किया, इससे पहले जब वोटर फार्म से खत्म नबूवत का हलफनामा निकाला गया था, उस वक्त भी इसी तरह का रद्देअमल आया और उसको वापस लेना पड़ा, और भी मुतअद्दिद मौके भी इस तरह से हुआ। क्या वजह है कि सूद पे भी तमाम मसालिक जो है वो मुत्तफिक हैं, अदालती फैसले मौजूद हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पे, कानून साजी के मामले पे ये सब कुछ मौजूद है। क्या वजह है कि दीनी जमातें इस एक बड़ा भारी पत्थर जो है उसको उठाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही, और क्या इस इत्तेहाद को इन मकासद के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि सूद के मसले पर भी पूरी कौम मुत्तफिक है, उलमा मुत्तफिक हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र मुत्तफिक हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत को इनकार नहीं था। हुकूमत को इस हवाले से किसी किस्म की कानून में तब्दीली या तरमीम का भी इनकार नहीं था, बल्कि इस फैसले के खिलाफ खुद बैंक चले गए कोर्ट में और बैंकों ने इस हवाले से स्टे लिया हुआ है। तो ये मामला जो है वो उस नौइयत का नहीं है, थोड़ी ज़रा उसकी कानूनी और आईनी हैसियत ज़रा मुख्तलिफ है। वरना ये बताएं, आज के इस मामले में आपकी चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हुई है और फिर उसमें मुशावरत भी हुई है। एक अपने ही फैसले को चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा करार दिया और उस पर जो है रिवर्स करके तो उसको जो तनाज़ा था वो तनाज़ा ख़त्म कर दिया गया। इस तमाम अमल में आपको चीफ जस्टिस का जो अमल था, मामला था, कैसे नजर आया? मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही फराखदिली का मुजाहरा किया है और बहस तो हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने जिस मुस्बत रवैये का इजहार किया, हमें इस पर उनको दाद देनी चाहिए और उनको खराज ताज़ीम पेश करना चाहिए। कि ये जो पहले फैसला किया गया था वो महज लाइल्मी थी, इत्तेफाक था, या उसके मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं किसी मुकदमे में पेश नहीं हुआ हूँ, आज पेश हुआ हूँ। आप तमाम समाज में वहाँ पर मौजूद रहे, आप माशाल्लाह बहुत सारे हवाले माजी के भी आते रहे। आज मुख्तलिफ आपको बार बार देखा, आप नमाज के लिए सिर्फ गए और उसके बाद जज साहब ने जब आपको कहा कि आप मुकम्मल समाज घूम के जाइएगा तो फिर आप वहाँ पर मौजूद भी रहे। कैसा देखते हैं कि क्या ये इस तरह से बार बार रिव्यू पिटीशन और फिर आगे जो मामला सब चलेंगे, क्या एतबार किया जा सकता है? ये जो नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त सवाल का तनाजुर ये है कि आम जो कारकुनान हैं, जो आम लोग हैं, वो रियासत पर उस तरह एतबार नहीं करते कादियानियों के। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए बात यह, कादियानियत के खिलाफ तो सोच एक ही है। बाकी जब एक शख्स इतने बड़े मनसब पर फायज होकर अलल एलान कहता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है और हम उसकी इजारे के लिए तैयार हैं, तो इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है। मौलाना साहब, हुकूमत भी इस मामले में आपके साथ से मुकम्मल तौर पर आज आपकी मेहनत का जो भी हुआ आपको इस बात पर बरकरार देते हैं, तो आप हुकूमत के लिए भी लौटते हैं इस मामले में? मैंने कह दिया ना जी, मैंने कहा चूंकि हुकूमत और अपोजिशन ऐवान के अंदर भी एक पेज पे थे इस मसले पर, सब मुबारकबाद के मसले। मौलाना साहब, पीर के दिन एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ इसी फैसले के खिलाफ, जो जमीयत इस्लाम के वर्कर थे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी गए थे, आज प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त का हुक्म दे दिया है, तो अगर उन वर्कर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है तो आप क्या? मेरे ख्याल में ये जमहूरियत में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हर मसले पर एहतजाज भी करना पड़ता है ताकि रियासती इदारे मुतवज्जह हों उस तरफ कि पब्लिक क्या चाहती है। अगर आप पब्लिक में नहीं जाएंगे, आप एहतजाज नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ कोई सुनेगा ही नहीं, तो इस तरीके से तो फिर वो मसला ही दब जाता है। तो मसले को जिंदा करने के लिए निकलना भी पड़ता है, एहतजाज भी करना पड़ता है, मुकदमे भी दर्ज होते रहते हैं और सारा सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, ये तासुब भी कभी कभी मिला कि शायद इसमें कोई आलमी ताकतें भी मतलब थी या कोई आपको उनसे नजर आया ऐसा? अगर है तो फिर उनके लिए क्या पैगाम? देखिए, हम तो उनको भी ये कहना चाहते हैं कि वो गैर आईनी अमल को सपोर्ट ना करें। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि देखिए, तहरीक भी चली है 1953 में, हजारों लोग शहीद हो गए, उसमें कामयाब नहीं हुआ जी। लेकिन अब पार्लियामेंट का फैसला आ गया, तो दुनिया जो जमहूरियत की बात करती है, इदारों की बात करती है और इदारों के फैसलों को एहतराम देती है, पाकिस्तान के कौमी असम्बली के फैसले को कबूल क्यों नहीं किया जा रहा? नंबर एक। दूसरी बात यह है कि
जनूबी अफ्रीका की अदालत ने भी तो इनके खिलाफ फैसला दिया है। आखिर उन्होंने इस्लाम की बुनियादी उसूल और बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसका मुताला किया होगा, उसको पूरी तरह पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि फिर अगर ये अकीदा उनका है तो वो मुसलमान नहीं है। मुकदमा बहावलपुर एक मशहूर मुकदमा है, वो अदालत थी और अदालत के सामने दोनों फरीक पेश हुए। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा देवबंद से आए और उन्होंने वहां पर बड़ी लंबी बहस की और बिलाखिर उनको कायल कर दिया और उन्होंने फैसला दे दिया। तो आलमी फोरम पर भी इनके खिलाफ फैसले आए हैं और जो लोग इनको, जैसे मिसाल के तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद लिखता है किताब में कि मैं अंग्रेज का खुदकाश्ता पौधा हूं, तो आज ये जमात जो है ये मगरिब का खुदकाश्ता पौधा है, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह इसराइल उनके लिए बस नाजायज भी है तो उनका बच्चा है और नाजायज बच्चे को भी वो कबूल कर रहे हैं। 40,000 50,000 तक इंसानों का उन्होंने खून पी लिया है और वो दफन हो चुके हैं। ये कोई इंसानी हक नहीं है कि अमेरिका इतने बड़े ज्यादा खून को और आम आदमी के खून को बहते हुए देख रहा है और फिर भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। किस मुंह से अमेरिका आज के बाद इंसानी हुकूक की बात करता है? जो उसने अफगानिस्तान में किया, जो उसने इराक में किया, जो उसने लीबिया में किया, जो उसने शाम में किया और अभी तक कर रहा है और आज फिलिस्तीन में कर रहा है। तो इस दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि या तो आप बुनियादी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा उसूलों को तस्लीम करें और अक्सरियत को सपोर्ट करें, उसूल को सपोर्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करें, पार्लियामेंट को सपोर्ट करें, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, और या फिर कह दें कि हमारे नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, हम सिर्फ अपने मफादात किताबें हैं, हमारा फ़ायदा जिसमें है। तो जो मेरा एजेंट बनता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मेरा एजेंट बनता है और वो कादियानी हो, मिर्ज़ाई हो, तो हमें वो कबूल हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा हमें कबूल नहीं। ये तरजीहात उनको खुद सोचना चाहिए और इस पर उनको अपने सोच में तब्दीली लानी चाहिए।